students, how are you? I am Valapsa Sharma, teaching physics. Now class 11 physics, chapter 3, motion in a plane, centripetal acceleration. Acceleration you know, rate of change of velocity. अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करे तो वेलोसिटी क्या होगा, हमेशा चेंज होगा, उसका डायरेक्शन हमेशा क्या होगा, चेंज होगा. ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अलोंग सर्कुलर पाथ इज नोन एज centripetal acceleration, and it is a vector quantity, its direction is along radius towards center. So this definition you can see, centripetal acceleration, the rate of change of velocity of a body along circular path is known as centripetal acceleration, and it acts towards the center of the circle along radius. The expression for centripetal acceleration, expression देखो, formula A is equal to V square by R. This you will derive this relation. Okay, this is very important. देखो इसमें है एक सर्कुलर पाथ वी कैन कंसीडर. ये क्या हो गया, सर्कुलर पाथ, सेंटर ओ, रेडियस आर, और बॉडी कहाँ है, ये पी पॉइंट्स पर. बॉडी इज मूविंग अलोंग सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड. यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है. ठीक है, but direction is changing, so velocity will change. So at point, if body is moving with uniform speed v along circular path, ठीक है, हाँ, और इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v1 एट टाइम t. अब पार्टिकल जो है या बॉडी जो है कहाँ पॉइंट आ गया, q पॉइंट पर आ गया, तो इसका डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो जाएगा, ये v2 हो जाएगा वेलोसिटी. मार्क्स दे दिया, वेलोसिटी एट पी पॉइंट. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टाइम टी प्लस डेल्टा टी, क्या होगा, टी प्लस डेल्टा टी टाइम. ठीक है, अब ये रेडियस आर है और एंगल क्या हो गया, डेल्टा थीटा. अब ये जो है चेंज इन वेलोसिटी जो है, चेंज वेलोसिटी यहाँ से कंसीडर कर सकते हो, ये कंसीडर कर सकते हो. रेडियस हो गया, पार्टिकल या बॉडी एट पॉइंट ए, इट्स वेलोसिटी v1 एट टाइम t1 t. अ पार्टिकल कम्स टू पॉइंट q, इट्स वेलोसिटी v2. डायरेक्शन इज चेंजिंग, सो वेलोसिटी चेंजिंग एट टाइम t प्लस dt, डेल्टा t. So this also diagram we can draw in this way. यहाँ पॉइंट ओ हो गया, दिस वी कैन शो, ये हमारा हो जाएगा वेलोसिटी v1 आई वेलोसिटी जो है v2, और ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये पॉइंट p और q. इस चेंज इन वेलोसिटी जो है ये हो जाएगा डेल्टा v कह सकते हो वेलोसिटी, और एंगल क्या हो जाएगा, डेल्टा थीटा. डेराइव करने के लिए ये फॉर्मूला रिमेंबर करोगे, क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ बाय रेडियस, और ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय टी एंगुलर वेलोसिटी, और v इज इक्वल टू आर ओमेगा. दिस थ्री फॉर्मूला यू विल रिमेंबर फॉर डेरिवेशन ऑफ a इज इक्वल टू सी स्क्वायर. नाउ हियर यू कैन सी, कंसीडर ए बॉडी or a particle moves along circular path with uniform speed or uniform motion. Particle is at a body at point P, its velocity is v1 at time t. Body at point Q at time, velocity is v2 at time t plus delta t. We can say t plus delta t, we can say. And these three formula, the same diagram I have drawn here. So it is very easy. We will write, consider
a body of mass m moves along a circular path with uniform speed of a circular path of a radius r. The velocity of a body at point P is v1 at time t, and at point Q its velocity is v2 at time t plus delta t. Therefore, these three formula you will remember. Theta that you are getting, theta is equal to arc length by radius. यहाँ मैग्नीट्यूड लेते हैं, ये आर्क लेंथ या यहाँ पे इस तरह से कंसीडर कर सकते हो, ये v1 जो है मॉड इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू v, यू कैन से स्केलर क्वांटिटी वी आर टेकिंग, यूनिफॉर्म स्पीड वी आर कंसीडरिंग. सो दिस आर्क लेंथ v1 v2 that will be v. Now these three formula arc, this theta means delta theta is equal to arc length by radius, या इस delta theta arc length magnitude we are taking by radius, v1 is equal to v2, v we are taking, call it equation 1. And also angular velocity omega is equal to theta by t. Theta means delta theta, t means delta t, we can take delta t, you can take and cross multiply this delta theta is equal to omega delta t, equation 2. From equation first and second we have delta theta is equal to, so delta v by v is equal to omega delta t. So here you can say delta v by delta t is equal to omega v. इसके साथ दोनों साइड क्या ले लेते हैं, लिमिट ले लेते हैं, या फॉर सिंप्लिसिटी ये हमारा v इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा v बाय डेल्टा t, यू कैन से एक्सेलेरेशन. तो इसके प्लेस पर पुट कर सकते हैं एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू ओमेगा v. This is your relation, and also you have read this relation, v is equal to r omega. So in place of v we can put a is equal to omega
और r omega. So A is equal to r omega square. So this relation also you can consider. और यहाँ पर जो है A is equal to, यहाँ से ओमेगा के प्लेस पर जस्ट यू कैन राइट डाउन, ओमेगा के प्लेस पर क्या हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू बी बाई आर. सो इन प्लेस ऑफ ओमेगा वी कैन पुट बी बाई आर और ये v. सो ए इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई आर. दिस यू आर गेटिंग एक्सप्रेशन फॉर सेंटीपिटल एक्सेलरेशन. ठीक है. और यहां से भी कर सकते हो कंसीडर. नाउ दिस ए इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा बाय टी. इसके प्लेस पे क्या कर सकते हो, एंगल 2 पाई बाय टी. और this omega is equal to, you can say 2 pi by t, that is 2 pi nu you can say. So A is equal to R, इसके प्लेस पर 2 pi nu frequency. So also it will help in solving numerical questions. So A is equal to 4 pi square nu square R. This also acceleration you can say centripetal acceleration. और एक सेंटीपिटल फोर्स है. इफ ए बॉडी इज मूविंग अलोंग सर्कुलर पाथ इट नीड्स एन एक्सटर्नल फोर्स. दैट फोर्स इज नोन एज सेंटीपिटल फोर्स. दैट फोर्स कंपेल्स द बॉडी टू मूव अलोंग सर्कुलर पाथ. कहीं भी कोई बॉडी जब सर्कुलर पाथ में मूव करे उस बॉडी पे क्या एक्ट करता है, सेंटीपिटल फोर्स. सेंटीपिटल फोर्स इज फोर्स विच कंपेल्स द बॉडी टू मूव अलोंग सर्कुलर पाथ. तो यू कैन अप्लाई न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. ओके, Newton's second law of motion. So then you know F is equal to ma. So this F is equal to, in place of m or in place of a you can write v square by r. So this will be F is equal to centripetal force. Centripetal force. Centripetal force is a force which compels the body to move along circular path. एटम में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अराउंड क्या है, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा. तो इलेक्ट्रॉन पर क्या है, एक सेंटीपिटल फोर्स एक्ट करता है. हु इज गिविंग सेंटीपिटल फोर्स टू द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स गिव्स द सेंटीपिटल फोर्स टू द इलेक्ट्रॉन, सो दैट इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग. हमारा सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में आवर अर्थ इज रिवॉल्विंग, या सन के अराउंड बहुत सारा प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स हैं, दे ऑल आर रिवॉल्विंग. तो हु इज गिविंग सेंटीपिटल फोर्स टू द प्लैनेट्स. हमारा अर्थ जो है, अर्थ रिवॉल्व करेगा अराउंड द सन. द अर्थ नीड्स सेंटीपिटल फोर्स. दिस सेंटीपिटल फोर्स कंपेल्स द अर्थ टू मूव अलोंग सर्कुलर पाथ अराउंड सन. द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड सन प्रोवाइड्स अर्थ सेंटीपिटल फोर्स, so that earth is revolving around the sun. So thank you very much. Thank you for watching.